मोबिना महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वेल बीइंग कॉन्फ्रेंस मसूरी के प्रसिद्ध वुड स्टार्ट स्कूल में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वेल बीइंग कॉन्फ्रेंस पाथवेज टू फ्लोरिश के 2 दिवसीय आयोजन का समापन हो गया, जिसमें शिक्षा में कल्याणकारी तत्वों की समावेश के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कुल 232 प्रतिभागियों का एक समूह ने हिस्सा लिया, जिसमें 17 भारतीय राज्यों के 77 स्कूलों के 147 प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल के एक स्कूल के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप मारतौलिया ने बताया कि उत्तराखंड में हर 5वां बच्चा इस तरह की मानसिक स्थिति से पीड़ित है और यह कार्यक्रम अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का शानदार प्रयास है। इस अवसर पर नेपाल से आई प्रतिनिधि शुभम गोडेले ने बताया कि आजकल के बच्चों में मानसिक तनाव ज्यादा रहता है। इसके लिए स्कूल के अध्यापकों के साथ ही अभिभावकों को भी उनकी भावना को समझना होगा और इस कार्यक्रम में काफी कुछ सीखने को मिला है। इस मौके पर बीनू थॉमस ने बताया कि वुड स्टॉक स्कूल 170 साल पुराना स्कूल है और यहाँ पर देश विदेश के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है और ये कार्यक्रम बच्चों की मनोस्थिति को समझने का बेहतर प्रयास है। उन्होंने उम्मीद बताई कि जल्द ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ है, इसमें कहाँ से लोग आए थे और किस तरीके से उन्होंने भाग लिया है और इस जो पहली बार हिंदुस्तान में कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर बताइए कितने स्कूलों के लोग थे, कहाँ से आए हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चे की मेंटेलिटी में और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है, इसमें बताना है आपको। मैम, जो 2 दिन का आपका कार्यक्रम हुआ। So this was India's first well-being conference. We organized it specially for the school counselors across India. So the reason why I organized this Woodstock as a school which has a lot of privileges. They sent me last year to another country to learn from them. Then I realized that the vocabulary in those schools are mainly well-being based. So what about in Indian schools where we still see that mental health is a stigma, but a lot of kids are struggling with mental health issues. So from that thought, we thought of organizing this event. We had around 232 people participated from 78 schools, from 17 states of India, and few are from Nepal too. And there is only one thing I heard from everybody. It was such an amazing experience. They learned how to see their kids from a different point of view. It is not to see that all disciplinary issues problems are based on because of their behavior, because there is a reason for that, and that mental health reasons or emotional issues we need to address it at that level. And also Dr. Alam, she spoke about how physical well-being is important because most of the illnesses now is because of lifestyle. So the importance of sleep, importance of having good food, avoiding all this junk food, all those things she mentioned. And Dr. David Bott, he mentioned about social and emotional well-being, the importance of it, the connectivity, belonging feeling, how these are all the key factors in deciding our life. And overall it was a success, and we are glad as Woodstock as a community we could offer to these 78 schools. Imagine these 78 schools, these teachers are going to change the lives of how many thousand students. So we can create that ripple effect in the society. We are so proud of Woodstock and we are so proud as a department. Parents के लिए, like I just want to quote what Mr. Manoj Abraham IPS sir, he is the ADGP of Kerala. He spoke this morning. He said nowadays the parents are giving mobile phones to the kids so that the parents can sit with their mobile phones all the time. So that is actually creating a wrong impact because kids' mental health is really getting damaged because of the excessive use of social media. So that is something that parents also need to be care of, because love, time and love, if their parents can provide instead of giving lot of material things and mobile phones, we can create a society. And also allow your kids to play. Just send them out instead of allowing them to play with the mobile phones. Yeah. मेरा नाम सुमन पौडल है और हम नेपाल से आए हैं, नेपाल चितवन, और हमारा स्कूल का नाम अंकुरम एकेडमी है। सर, जो आज यहाँ कार्यक्रम 2 दिन का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताइए, किस तरीके से बच्चों का अवेयरनेस किया जा सकता है, उन पे जो उनके माँ बाप हैं उनके किस। हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में जहाँ बहुत सारे स्कूल से प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स आए थे,
और जो गेस्ट ने यहाँ पर जो शेयर किया है, जैसे आपने कहा, ये मानसिक तनाव जो बच्चे को आजकल बहुत ज़्यादा रहती है और ये बहुत सारे चीज़ों से रहती है। जैसे अभी डिजिटल हम लोग बच्चे लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं, वो लोग को एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है। तो पेरेंट्स और टीचर्स और हम सब वो लोग को क्या कर सकते हैं कि वो लोग का प्रॉब्लम क्या है, उसको अगर हम अच्छी तरह से जान ले और उनको सपोर्ट करें तो एकेडमिक्स में भी अच्छा कर लेते हैं। तो अभिभावकों के लिए जो आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई में किस तरीके से आगे बढ़ें? अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हम लोग को नया स्किल्स की ज़रूरत है और एट द सेम टाइम बच्चे लोग को बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और बहुत सारे सोशल मीडिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को हम क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब कुछ करो पर उसका एक डिसिप्लिन रूटीन में करना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन और रूटीन में नहीं करते हैं तो वो एडिक्शन बन जाता है और जब वो एडिक्शन बन जाता है तो हम अपने मार्गदर्शन से मिस कर जाते हैं और वो अभी 21st सेंचुरी के लिए आप ये सब कुछ बच्चे लोग को अपने आप को समझ के और आने वाली आगे कौन सी टाइप की काम करना है, वो लोग को उनको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंस दे के आगे जाना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करता हूँ। सर, जो कार्यक्रम हुआ है 2 दिन का, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि कितना सफल रहेगा? अब ये वुडस्टॉक में जो ये प्रोग्राम हुआ है वो इंडिया का फर्स्ट वन एंड ओनली प्रोग्राम हुआ है और ये प्रोग्राम डेफिनेटली हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है और सिखाने के साथ साथ इसने एक अवेयरनेस क्रिएट किया है। अब हम जैसे टीचर्स और स्कूल लीडर्स अपने स्कूल में जाके इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो बताएगा कि ये प्रोग्राम का सक्सेस कितना होगा। और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जो 70 स्कूल से आए थे और इंक्लूडिंग नेपाल से जब हम आए तो हमें लगता है कि ऐसा प्रोग्राम और होना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये चीज़ की अवेयरनेस होने से हम सब मिल के काम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये कार्यक्रम हुआ है, बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलेगी सर? सर जो बाहर से डेलीगेशन जो आ रखा है और उन्होंने किस तरीके से इसको समझाया सर इस कार्यक्रम में? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत ज़रूरत है इस तरह के कार्यक्रम की, बिकॉज़ हमारा एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो हमारे एडोलसेंट जिसकी बात हम करते हैं, लगभग हमारे पास 40 लाख एडोलसेंट उत्तराखंड में है और हर एक 5वां बच्चा किसी तरह की मेंटल स्थिति से गुजर रहा है, कोई फाइट कर रहा है। बट दिक्कत ये आ रही है कि इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। हमारे गवर्नमेंट साइड में हमने स्टार्ट कर दिए हैं, हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, जहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करवाते हैं कि इस तरह की कोई बीमारियाँ अगर किसी को हो रही हैं या किस तरह को इस तरह की दिक्कत है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए। बट अभी भी समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, रियलाइजेशन की ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है कि इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की परेशानियों से हमारा यूथ, हमारा एडोलसेंट, हमारे जो बच्चे हैं वो जूझ रहे हैं और उसके त्वरित उपचार के हेतु, उसके काउंसलिंग हेतु एक सशक्त नीति बनाने की बहुत आवश्यकता है। सर, अक्सर देखा गया है कि जो पढ़ाई का बोझ होता है उसमें मानसिक रूप से बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा भी या उत्तराखंड सरकार द्वारा भी कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए? हाँ, बिल्कुल। हमारा स्टेट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है NHM के माध्यम से और फिर नीचे उसको डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की तरह उसको एड्रेस किया जाता है। हमारे जो मुख्यतः जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर हम लोगों ने साइकेट्रिस्ट या फिर डिप्लोमा इन प्राइमरी केयर साइकेट्री वाले रखे हुए हैं। बहुत सारे स्कूल्स में हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि नियमित तौर पे स्कूल पे जाते हैं, तो इसको एड्रेस किया जा रहा है। बट अगेन मैं आपको दोबारा ये बात करना चाहता हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सेप्टेशन कि मुझे इस तरह की परेशानियाँ हैं, इस पर अभी हमें बहुत काम करना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि मुझे इस तरह की परेशानियाँ हैं, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तब तक उसका उपचार संभव नहीं हो पाएगा। सर, अभिभावकों की जो भूमिका की बात करी जाए, अभिभावकों की किस तरीके की भूमिका रहेगी? अभिभावक को सिर्फ एक चीज़ करनी है, उनको नोटिस करना है कि उनका बच्चा जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ पहले करता था, क्या उसमें कोई एक विघ्न हो रहा है, क्या वो डेविएट कर रहा है अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ से। अगर अभिभावक सिर्फ इतना देख पाए, अपने बच्चों से 2 मिनट बात कर पाएँ डेली, उनसे कह पाएँ कि भैया तुम्हें अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। अब अभिभावक इतना ही कर दें तो उनकी मेरे ख्याल से जिम्मेदारी पूरी होती है इसमें।